एंटरप्रेन्योरशिप को हम बिजनेस में पैसा डालने से रिलेट नहीं करते. इट इज अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ. एन आईएएस ऑफिसर कुड बी अ एंटरप्रेन्योर. एआई इज देयर. इट्स नॉट द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट. एवरीवन हैज टू यूज इट. अगर आप नहीं यूज करोगे पीछे रह जाओगे. विदाउट मेंटर्स और विदाउट स्ट्रक्चर तरीके से ये हमें हैंडीकैप भी बना सकता है. टीचिंग अब हो पाएगी. एआई आपका एक वो मैं जैसे वो एजेंटिक ट्विन एक असिस्टेंट बनेगा, एक पर्सनल असिस्टेंट बनेगा जो आपको बताएगा कि ये रिक्रूटमेंट व्हेन यू मेक सम मनी आल्सो, देन आल्सो इट्स नॉट इजी. इट्स जस्ट दैट कि पहले आप किसी ट्रेन में बैठ के परेशान थे, अब आप मर्सिडीज में बैठ के परेशान है. सबसे पहले कंट्रीब्यूट इन अदर सक्सेस. करेक्ट, राइट. प्रोड्यूस मोर लीडर्स. चेस कैपेबिलिटीज. हैप्पीनेस विल बी अ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग गुड वेल डन. ठीक है ना. हम लोग अपना पोटेंशियल अचीव नहीं करते और सबसे बड़े रिग्रेट लाइफ में यही होता है. Welcome to the show. This is Terra Talks. This is the very first season and very first episode of this talk show, and the entire purpose of this talk show is to learn from the experience of others. That's it. So everyone here, we will be talking to you, sir. Very general talk, general conversation, and we'll try to grasp as much as we can from your experience. Yes. So starting with that, I would like you to please introduce yourself to my team. Sure. I am Vishal Sood. I belong to Amritsar and I am founder of Placecom. I am an alumnus of IIM Ahmedabad. I started my career as a derivatives trader. So like everyone else, I thought कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ पे ही चले जाते हैं. Finance was at that point of time, and I was not very good at it because my heart didn't belong to it. And in my heart, I am actually basically a creative person. I am an entrepreneur, and then I came back to India, started one company which bombed. So then I have to go back to job. And there I was pretty successful. My last role was a role of a group CEO for a very diversified group into education, into media, into real estate, hotels. And after that again I thought, inspired by Mr. Chawla, that I will become entrepreneur again, and I started Placecom. And we are now a funded company. We have raised more than $2 million, and currently we are the exclusive partner jointly along with Google. We have developed AI in higher education. So this has been the entrepreneur journey. In my heart, I'm a sportsman. So I play with my kids and youngsters in my society. I play basketball with them, cricket with them. I have played for Punjab also, and so that is generally who I am. And I love having a cup of coffee, listening to interesting people over there. So that is me, more or less. Nice to have you on the show, sir. And this is the very first episode. We all are doing this first time. So having you around is already giving us a quite comfort. So let's, if you allow, we'll start with the show ahead. Absolutely. All right. So you told us about Placecom, right? So I would like to know कि whenever we start a startup, whenever we are coming up with an idea, हमारा एक टेंटेटिव माइंडसेट होता है कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने बिजनेस आइडिया से. So what was the problem that you were trying to solve when you started Placecom? Okay, as I mentioned, I was group CEO where I used to manage 3 universities, and again coming from IIM Ahmedabad, I saw the stark difference in our Placecom. So the name Placecom came from because the placement committee was called Placecom in IIM Ahmedabad, and the difference was their companies had to pay and to come and hire. So when I was placed, my company had to pay $5,000 to hire me, but in most of the universities it is the other way around, and especially institutes which are a bit away from centers, big towns. So we wanted to democratize placements. Students are talented everywhere. It is just lack of opportunities. So our idea was that how to connect those talented individuals with the opportunities, give them awareness so that they feel more job ready, confident, and build an inclusive tool. ज़रूरी नहीं है कि जिसको सिर्फ अंग्रेजी आती है वही इंटेलिजेंट है. Someone who can speak in Hindi, Punjabi. So we have built this tool where you can improve your concepts in a vernacular language, interact with the, let's say a particular role is there. I want to be ready for that role. I need not to be force myself that I have to ask everything in English.
मैं उसमें क्या पूछा जाएगा, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में उसको हिंदी पंजाबी जिस मर्जी लैंग्वेज में समझ पाऊँ. सो दिस इंक्लूसिव टूल वी वांटेड टू बिल्ड ताकि अपॉर्चुनिटीज डेमोक्रेटाइज हो और कंपनीज के लिए भी बेनिफिट है. कंपनीज नीड नॉट टू गो टू एवरी जियोग्राफी टू हायर समवन इन रिमोट हिमाचल प्रदेश और विलेज. आई कम फ्रॉम चबाल इन अमृतसर नियर इट इज इन तरन तारण नाउ. सो how do companies go over there? But with the help of this tool, they can find the right talent. Our AI will give the suitability of each candidate with that job. So now you don't have to hire from 8-10 campuses you visit. You can hire from best across India. So it is a win-win situation from an applicant perspective also. They are able to explore their potential, find the right opportunities, and at the same time campuses also benefit. Their placement process is sorted. And so the career of a student is not dependent on how much their placement officer will travel. And companies get to hire the best talent from across the board. Right. So अब आपने एक word use किया AI. So जब my team was doing little research on you, even I was doing, so we came across a company named UniAI. Yeah. So थोड़ा सा UniAI के Okay, बारे में if you can tell. So we started with Placecom. As I mentioned, we partnered with Google. तो जब AI Impact Summit हुआ, Google and our team we collaborated developed this tool UniAI. आज एजुकेशन में TerraMind is also a pioneer in AI in school education. Similarly, we are leveraging. जब हमने देखा कि प्लेसमेंट में क्या बेनिफिट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की रेडीनेस इंप्रूव हो रही है, सो वी थॉट कैन वी टेक इट टू एकेडमिक्स. मेरे को अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है. टीचर, लेट्स से टीचर इज फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया और टीचर इज फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड दे हैव गिवन अ लेक्चर इन देयर ओन लैंग्वेज. क्या मैं उस लेक्चर के साथ विद द हेल्प ऑफ AI अपनी मदर टंग में इंटरेक्ट कर सकता हूँ? So we have leveraged AI to improve learning and research outcomes in higher education. So then we extended our thought, क्या ये एडमिशन प्रोसेस को बेटर कर सकता है ताकि बच्चों का भी टाइम कम वेस्ट हो. नाउ इमेजिन अ पेरेंट जो वर्नैकुलर है, मतलब कि अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और उनको रात को 7 बजे एक यूनिवर्सिटी में से ये पूछना है कि क्या मेरा बच्चा, मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ, दैट वाज अ चैलेंज जो मैंने चावला जी के साथ डिस्कस किया. इनके बेटे ने जब एडमिशन लेनी थी, एक यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर BCA में मैथ्स अलाउड था, एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें नहीं अलाउड था. अब ये क्वेश्चन मैं रात को 7 बजे, तो कैन AI गाइड मी, काउंसिल मी एंड हेल्प यूनिवर्सिटी ऑल्सो आइडेंटिफाई हु आर द राइट कैंडिडेट्स. सिमिलरली योर एकेडमिक्स, मैं एक फैकल्टी हूँ, मेरे को बच्चों को केस स्टडी मेथड से पढ़ाना है, तो क्या मैं केस स्टडी जिसमें अभी महीनों लग जाते हैं एक केस स्टडी बनाने में, क्या मैं 5 मिनट में बना सकता हूँ और वो ओरिजिनल भी हो और मेरे बच्चे उससे समझ पाएं? क्या मैं सेक्रेटेरियल एफर्ट को ऑटोमेट कर सकता हूं? सो UniAI एक एक्सटेंशन है. प्लेसकॉम इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट कि जो एंड टू एंड सोल्यूशन है हायर एजुकेशन का. टुडे लॉट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज, इवन NITs आर यूजिंग आवर सिस्टम टू इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ AI और एक फ्यूचर रेडी एजेंटिक यूनिवर्सिटी बनाना जहां पे हम स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं विकसित भारत के उस पर फोकस कर पाएं और टीचर्स का टाइम, स्टूडेंट्स का टाइम कोर कॉन्सेप्ट्स पे लगे, रेदर देन कि मैं पूछने जा रहा हूं मेरी फीस कब ड्यू है, मेरे रिजल्ट्स कब आएंगे. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आज 6-6 महीने तक रिजल्ट्स नहीं आते. थ्रू आवर सिस्टम रिजल्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू मिनट्स बिकॉज AI विल असेस इवन हैंड रिटन नोट्स एंड ऑफ कोर्स विद अ ह्यूमन इन द लूप. ये सिर्फ ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है बिकॉज स्टिल देयर इज नो एल्गोरिथम बेटर देन ह्यूमन माइंड. सो टिल दैट इज देयर, सो ह्यूमन लूप इज बिल्ड इनटू इट ताकि एक, सो इट्स नॉट लाइक जस्ट ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस, इट इज लाइक हैविंग योर एजेंटिक ट्विन, कि आपका एक ट्विन है जो आपके आधे काम कर देता है. सो वी आर क्रिएटिंग ट्विन्स ऑफ एवरी स्टेक होल्डर इन द हायर एजुकेशन, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो एडमिशन टीम का पर्सन है, चाहे वो प्लेसमेंट ऑफिसर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे उनके पेरेंट है. सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ AI, हाउ वी लुक एट इट. राइट. अब जैसे ये AI का पार्ट हो गया जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से देख रहे हैं. टुडे इफ़ यू गो टू द स्कूल्स और यू मीट स्टूडेंट्स, उनके पास भी बहुत से टूल्स आ गए हैं जो AI उनको हेल्प कर रहा है कंसेप्ट समझने में, कंसेप्ट बनाने में. वैसे कुछ टूल्स हमारी टीम भी क्रिएट कर रही है इन TerraMind. सो हाउ डू यू सी AI ट्रांसफॉर्मिंग द वे स्टूडेंट्स आर लर्निंग और द लर्निंग पैटर्न्स विच आर हैपनिंग दीज डेज? सो लुक, AI is there, it's not the future, it is the present. Everyone has to use it. अगर आप नहीं यूज करोगे पीछे रह जाओगे. अगर पर इसका रिस्क ये है कि अगर थ्रू विदाउट मेंटोर्स और विदाउट स्ट्रक्चर तरीके से ये हमें हैंडीकैप भी बना सकता है. लोग अपना ब्रेन यूज करना बंद भी कर सकते हैं. तो हम जैसे टूल बनाते हैं, अगर एक स्टूडेंट लेट से
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हमारा सिस्टम उसको आंसर नहीं देता, उसको हिंट देता है, उससे आगे क्वेश्चन पूछता है कि अप्रोच, ताकि उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अब जो बच्चा शाय है, क्लास में हाथ नहीं उठा पाता, या जो बच्चा पर्सनल ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकता, वो इस टूल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। तो मेरे को लगता है कि आज एक मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ये सबको रिप्लेस कर देगा, नो। बट आप और कुछ लोग डर के इसको अवॉइड कर रहे हैं, दोनों में रिस्क है। इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस वेयर यू लेवरेज इट फॉर योर गोल्स। पर अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। पर अगर आप इसको ब्लाइंडली ले आओगे सिस्टम में विदाउट सेफ गार्ड्स, रेल गार्ड्स, इट कैन क्रिएट अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इट इज देयर। एंड मेरे को ये लगता है, अगर हमने एक हमारा गोल है कि टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, विकसित भारत, तो हमारे बच्चों में वो स्टेम एजुकेशन, वो टेम्परामेंट, और अगर वो हैंड्स ऑन होंगे तो उसी में से कुछ एक्सेप्शनल लोग निकलेंगे जो फ्यूचर की $1 ट्रिलियन कंपनीज बिल्ड करेंगे। राइट, सो आपके इसी पॉइंट से ना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वी कैन सी पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट AI दीज डेज, लेकिन कुछ सम पीपल आर, देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु आर लिटिल फेयर्ड. So how do you see that how students should or the professionals should prepare themselves for this technology shift? आई एम नॉट सरप्राइज्ड। लाइफ दुनिया में आप हिस्ट्री देख लो, जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ लोग डरे हैं, कुछ इनोवेटर्स ने उसको अडॉप्ट किया, देयर इज नॉट नथिंग वेरी सरप्राइजिंग अबाउट इट। नाउ द लीप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज सो फास्ट, इससे प्रोडक्टिविटी गेन्स इतने ज़्यादा हैं, इसने कुछ टाइम के लिए रिडंडेंसी क्रिएट की है। ये फैक्ट भी है कि कुछ रोल्स में रिडंडेंसी क्रिएट की है, जिससे कुछ जॉब लॉसेस होंगे, पर ये नए सेट ऑफ रोल्स क्रिएट करेगी। अब टीचर का काम किसी भी क्लासरूम में सिर्फ एग्जामिनेशन चेक करना थोड़ा है, उनका काम तो मोटिवेट और स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना है। पर आज इतने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, अटेंडेंस लगानी, उनके एग्जाम चेक करना, ये सब कुछ करना, वो इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते। एक क्लास में 30 बच्चे, उनको इतने काम है, वो इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। आज टीचर का जो रियल काम है, एक इंस्पिरेशन बनना, एक रोल मॉडल बनना, एक बच्चे से कनेक्ट करना, आज उनको टाइम मिल पाएगा। कि एक स्टूडेंट बैठा क्लास में, उसने 3 दिन से कुछ हाथ नहीं रेस किया, वो चुप बैठा हुआ है, पहले तो वो बड़ा लाइवली होता था, इज समथिंग रॉन्ग? आज टीचर को वो टाइम मिल पाएगा कि जो ह्यूमन रोल्स हैं, जो टीचर के ट्रू रोल्स हैं, जो हमारे गुरुकुल सिस्टम में हर बच्चे के टैलेंट पे हमारे टीचर्स, हमारे गुरु फोकस कर पाते थे, अब वो उनको मिल पाएगा। हमने क्लासरूम्स को इंडस्ट्रियल क्लासरूम बना दिया कि 500 बच्चे पढ़ेंगे, हर क्लास में 40 बच्चे, टीचर आएगा, आधा घंटा जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, गुरु के आश्रम में लोग रहते थे, और फिर उसके एक एक टैलेंट को, उसके स्किल्स को, उसके नेचर को हम समझते थे। और मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर जितना आप AI को डीपली समझते हो, मैं कई बार रिलेट करता हूँ कि जो हमारे वेदों में लिखा है उससे रिलेटेड है, कि एज इफ AI इज कमिंग आउट ऑफ एक साइकिल चलता है टेक्नोलॉजी का। तो मेरे को ये लगता है कि ट्रू टीचिंग अब हो पाएगी। AI आपका वो एजेंटिक ट्विन, एक असिस्टेंट बनेगा, एक पर्सनल असिस्टेंट बनेगा, जो आपको बताएगा कि ये दिख रहा है, ये बच्चे एट रिस्क हैं, इसका ध्यान कम हो रहा है, इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि एजुकेशन में टीचर्स को इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, कि वो जो जिस पर्पस से एक बंदा इनिशियली टीचर बन के आता है, जिस जोश के साथ, और जब वो मैकेनिकल काम देखता है, उसको रिपोर्टें बनानी है, वो सारे काम अब तो वो ट्रू टीचर बन सकते हैं। तो मैं तो AI को एक टीचिंग में सबसे इम्पैक्टफुल टूल देखता हूँ। राइट, अब हम, जैसे मेरी टीम है, तो इनमें से कई हैं जिन्होंने दे हैव नॉट टोल्ड मी, बट उनके एक्शन से, उनके वे ऑफ स्पीकिंग, काम करने के तरीके से, आई कुड मेक आउट दैट सम ऑफ देम आर विलिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द नियर फ्यूचर। सो एंड विच आई feel very happy about कि कोई somebody came here, learned the things and then started their own journey. Absolutely. So past में भी कुछ रहे हैं team members and still they are in contact. Some have gone to US, started their own venture. And इनमें से भी कई मेरे को लगते हैं who are capable of or who are either planning to do it. तो like you have been in this startup journey from so long, I just wanted to know what are the challenges that you have faced and what those challenges have taught you. Look, when I look at my entrepreneurial journey, first of all, I have come to the realization that I was as much an entrepreneur in the job as I am in while running my own business. Entrepreneurship is not about just assuming a financial risk. आज आप TerraMind का पार्ट हो, आप यहाँ पे भी entrepreneur हो। entrepreneur का काम क्या होता है? वेल्थ क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना, एंटरप्राइजिंग होना। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम
बिजनेस में पैसा डालने से रिलेट नहीं करते. इट इज अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ. एन IAS ऑफिसर कुड बी अ एंटरप्रेन्योर और अ CEO ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर. सो इवन इन माय प्रीवियस रोल व्हेन आई वाज द ग्रुप CEO, आई वर्कड लाइक एन एंटरप्रेन्योर एज इफ वी आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड वेल्थ. तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम इससे सेपरेट करते हैं. सेकेंडली, जो मेरे लेसन्स थे, वट एवर माई सेटबैक्स वर इनिशियली, they were not because of talent or knowledge, they were because of lack of self awareness. I was not very self aware. एक एंटरप्रेन्योर को एक अपने में क्लैरिटी होनी चाहिए कुछ भी तरह कि किस लेवल की एंटरप्रेन्योर सबको बनना है, पर किस लेवल के एंटरप्रेन्योर. फाइनेंशियल रिस्क की जैसे हम बात करते हैं, डू यू हैव दैट रिस्क एपेटाइट? आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. स्ट्रेंथ जानना इसलिए भी जरूरत है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री को फाउंडर भी लेके आ पाओ. अगर आपकी टेक है तो क्या कोई मार्केटिंग वाला बंदा आ सकता है, कोई स्ट्रेटजी वाला बंदा आ सकता है. तो सेल्फ अवेयरनेस की जो कमी थी वो मेरे लिए एक चैलेंज था, और जब वो सेल्फ अवेयरनेस इट हेल्प मी अ लॉट. एंड सो, और अगेन आई थिंक आई रियली हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि आज जनरली कोई भी एंटरप्रेन्योर, ये नहीं वो सबको बोलता कि बाकी सब मेरे पास सिर्फ जॉब करते रहे, बट दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग माइंडसेट ऑफ योर्स. और अभी जस्ट फ्यू डेज बैक, वन ऑफ my earlier design head, he came to me just 2 days back with a new business idea. He is working now somewhere else. So, and I was very happy that now people are, because जो आपके पास जो उस टीम का पार्ट होते हैं ना, they become your alumni. ये लाइफ में तरक्की करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम अपने आप आगे बढ़ेगा. तो इस माइंडसेट से when you run a company and you see that you are contributing in their success, they will give back more. So मेरे को ये लगता है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, करेज सबसे जरूरी चीज है. करेज इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बिकॉज इट इज टफ, इट इज नॉट ईजी. चाहे फंडिंग मिल जाए, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. इट इज अबाउट नॉट डाइंग ऑन दैट डे, लिविंग फॉर अनदर डे. कि जब आपको लगता है अब खत्म है, बट देन यू सर्वाइव दैट डे एंड लिव अनदर डे. एंड इवन व्हेन यू मेक सम मनी ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स नॉट ईजी. इट्स जस्ट दैट कि पहले आप किसी ट्रेन में बैठ के परेशान थे, अब आप मर्सिडीज में बैठ के परेशान है. बस इतना ही फर्क होता है, परेशान आप रहते हैं. और इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताऊं एंटरप्रेन्योरशिप का क्या था? एक्सेप्टेंस. कि लाइफ तो टफ ही है. हम कई बार भगवान बोलते हैं, भगवान ये सारी मुश्किलें खत्म कर दे, कोई चैलेंज ना हो, बस अकाउंट में पैसे आते रहे. ये वेस्टेज ऑफ प्रेयर है, मैं ये बोलूँगा. इट इज़ लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ चावला जी बोलें कि अब मेरा वेट बढ़ गया है, अब ना आप भगवान तू ग्रेविटी कम कर दे. वो तो होनी नहीं है, वो तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना, डाइट ठीक करनी पड़ेगी. सो इट इज़ लाइक दैट. सो यू डोंट वेस्ट योर प्रेयर्स. कितनी बार आप लोगों ने सोचा होगा जब आप पढ़ते भी थे, अब बिकॉज ऑल ऑफ यू आर ऑलमोस्ट फ्रेशर्स, कि यार मैं एक दिन उठूँ, एग्जाम हुए हो, बस हम सीधा डिग्री मिल गया, सोचते थे ना. इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ प्रेयर, क्योंकि भगवान एक लिमिट में सारी प्रेयर्स पूरी करता है. बट आप वेस्टफुल चीज़ें ना मांगो, ठीक है चावला जी. सो वी फोकस ऑन what we are gonna get. Alright. So acceptance आनी चाहिए कि लाइफ टफ ही रहनी है. You have to get tougher. As simple as that. Excellent, sir. So, what qualifies or defines a great leader in today's rapidly changing world? देखो, this is something that has not changed. Although the world is changing rapidly, great leadership still remains the same. सबसे पहले contribute in other success. Correct. Right? Produce more leaders. Right? And then get out their way. और ऐसा नहीं कि लीडरशिप एक ही स्टाइल की, कोई सॉफ्ट स्पोकन ही सिर्फ लीडर होगा, हमेशा प्यार से बात करनी है. जरूरत पड़ने पे अगर किसी को खींचना है तो आपको खींचना भी होना चाहिए, पर इट शुड बी पर्पस. लोग बाद में समझ जाते हैं कि बट फेयर होना चाहिए लीडर. ये नहीं कोई फेवरेट है, कोई फेयरनेस होनी चाहिए. एंड एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए बाकियों से भी. जब आप एक्सपेक्टेशन लो कर दोगे, फिर वो लोग भी काम नहीं करेंगे, तभी आप उनको उनका पोटेंशियल तक खींच पाओगे. और अगर जो बॉसेस आपको कहते हैं और करो, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना. मैंने इन माई प्रीवियस रोल कुछ ऐसे बॉसेस होते थे जो 4-5 अपने लोगों को आसपास बिठा के उनको कुछ नहीं करने देते थे. वो लॉन्ग टर्म में और उनका नुकसान करते थे, क्योंकि एंड में तो परफॉर्मेंस देखनी है. लॉट ऑफ पीपल एज अ ग्रुप CEO, हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि CEO से दोस्ती करते हैं. तो मैं उनको कहता मेरे से दोस्ती कर लो, और मैं आपका एज अ रिटर्न, एज अ फ्रेंडली जेस्चर मैं क्या करूंगा, आपको और काम दूंगा. ये मत सोचना कि अब आप CEO के दोस्त हो तो आप आराम से बैठोगे. सो एज अ ट्रू फ्रेंड आई विल हेल्प यू बिल्ड योर कैपेबिलिटीज. मैं चलो आई डोंट नो इफ दिस क्वेश्चन विल कम, मैं फिर भी ऐड कर देता हूं कि लॉट ऑफ टाइम वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, राइट, बट दैट इज अ रॉन्ग गोल. आप कभी हमेशा खुश नहीं हो सकते. अगर आपको चाहते हो चेज कैपेबिलिटीज,
Be a better friend, better father, better son, fitter person, better team player. Chase capabilities. Happiness will be a derivative of something good, well done. ठीक है ना. और हर वक्त कभी टांग दुख रही है, कभी एक्सीडेंट, हर वक्त थोड़ा खुश रह सकता. आज के टाइम में मैंने देखा ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं हमेशा. कोई नहीं खुश रह सकता. तो लाइफ टफ है, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, एंड चेज कैपेबिलिटीज. बेटर बनना है, ठीक है ना, फिट बनना है, अच्छा खाना खाना है, राइट. और बेसिकली जो भी काम है आपका उसमें रिसर्च करनी है, एक्सपर्ट बनना है. आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपके पीयर्स की, कि नहीं समझ में आ रहा है जाके सुधेंदु से पूछ के आते हैं. दैट इज वन फैक्टर ऑफ सक्सेस. वो एक सक्सेस है. आप फिट हो गए, वो सक्सेस है. जेनरस होना है. कोई दोस्त आया, उसको कॉफी पिलानी है, ये नहीं 500 का नोट पीछे डाले, पैसे नहीं है. हैव अ बिग हार्ट. दैट इज सक्सेस, राइट. एंड यू शुड बी, ऑफ कोर्स अपने काम की रिस्पेक्ट मैंने बोली दी है. फैमिली में लव होना चाहिए. जो छोटे बच्चे जब आपसे आपको मिलें, वो खुश होकर मिले. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. ऐसा नहीं कि सक्सेस के लिए यही चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल करती हैं. और ये कॉन्शियसली, अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी कि ग्रोथ तो होती रहती है कंट्री में, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होनी है. ग्रोथ इज नॉट नेचुरल, ग्रोथ इज आर्टिफिशियल. जोर लगा के. डिके इज नेचुरल. आप बैठे रहो, सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी. आपकी सेहत, आपकी नॉलेज, आपका पैसा. ग्रोथ इज अननेचुरल. ग्रोथ के लिए फाइट करनी पड़ती है. सर्वाइवल तभी होता है कि नेचर इज वेरी वेरी टफ. तो ग्रोथ विल नॉट कम नेचुरली, डिके विल कम नेचुरली. तो हमेशा अलर्ट रहना है. दैट इज, आई थिंक अगेन इट अप्लाइज इन लाइफ, इट अप्लाइज इन एंटरप्रेन्योरशिप इवन मोर. सो अब जैसे अगेन कमिंग टू टेक्निकल पार्ट, नाउ वी आर सीइंग दैट एंट्रोपी ने नया मॉडल निकाल दिया, चैट जीपीटी ने ये कर दिया, मेटा वो कर रहा है. सो एवरी नाउ एंड देन दीज न्यूज़ आर कमिंग. सो उससे क्या हो रहा है कि जो जैसे मेरी टीम है या हम लोग काम कर रहे हैं टेक पे, एक कांस्टेंट प्रेशर फील होता है कि यार अब इसके लिए भी अपग्रेड करो, अब इसके लिए भी अपग्रेड करो, अब इसके लिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स दैट. व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग इट शुड बी अप टू डेट, अदरवाइज यू आर बिहाइंड द मार्केट, राइट. सो ऐसी क्या स्किल सेट हैं जो लाइक माई टीम शुड लर्न और स्टूडेंट्स टुडे शुड लर्न टू फिट इन दैट कॉम्पिटिशन ऑफ स्किल अपग्रेडेशन? देखो, यही इस क्वेश्चन का जो एटीट्यूड है वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये करना पड़ेगा. ये ऐसे ही होना है. लाइफ इज टफ. वही तो मैं बोल रहा हूँ. आपने इस बिजनेस में आए हो ना, बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम. दैट इज द नेचर ऑफ द डेविल यू आर इन. दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट. यू हैव टू हैंडल कि अब आप एआई में हो, नए मॉडल्स आते हैं, आपको समझना पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं कि ऐसी जो एआई का एक्सपर्ट है ऐसी भी इंक्रीमेंटल, ऐसी भी स्टॉक चेंज नहीं आती, थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं. तो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम. एक्सेप्टेंस कि यही होना है और हमने रेडी रहना है, हमने अपने आप को निखारते रहना है. दैट इज द होल पॉइंट. अदरवाइज डोंट डू दिस, डू समथिंग एल्स जहाँ पे कोई चेंज नहीं है. सरकारी ऑफिस वहाँ पे भी नहीं है. ऑल राइट. सो ठीक है. अब जैसे नाउ दोज हु आर hunting for a good career or those who are looking for good opportunities, कुछ लोगों का mindset होता है they can identify the opportunity and crack it, but वैसी percentage of people कम होते हैं. maximum number of people who are looking for the opportunities सामने आती भी हैं but they could not recognize it, right? so how can like वो आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है. so in your experience how can we recognize those opportunities or we can let go them कि opportunity तो है but अभी priority कुछ और है, we should let it go or we should okay let's go for it, crack it down, we should try for it. The answer comes from what I said, self awareness. opportunity को आपने अपने से मैच करना है. लोग तो हर काम में पैसा बना रहे हैं पर आप किस में बना पाओगे. what is your talent, what is your interest, what is your personality. be self aware. उसके साथ लिंक करो क्या चीज़ में पैशनेट हो, अच्छे भी हो कि कोई आपको उसके पैसे दे दे. अब मैं बास्केटबॉल के लिए पैशनेट हूँ पर मेरे को किसी ने उसके पैसे नहीं देने, पैसा मेरे को कुछ और करके ही कमाना पड़ेगा, है ना. सो आइडेंटिफाई लाइक दैट कि किस चीज़ को हॉबी बनाना है, किसको करियर बनाना है. और अगेन करेज. अपॉर्चुनिटी आती है पता भी होता है पर हिम्मत नहीं पड़ती. वो कहते हैं ना डेविल नोन इज बेटर देन डेविल अननोन. ये हालांकि ये स्टैटिस्टिकली गलत है. मूव इनटू समथिंग, टेक सम रिस्क एंड कंसिस्टेंटली अगर आप अपने पे काम करोगे ना, सर्टेन गोल्स बना के,
और आप 20 साल अच्छी लेट से एक लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट दिखते हैं। होता क्या है कि लेट से आज आपने पोटेंशियल पे अपने काम नहीं किया, कि सर ने काम दिया था, टाइम पास करते रहे, फेसबुक नहीं अपना काम पूरा किया, उस दिन नहीं फर्क पता चलता। डिके स्लो, रस्टिंग जैसे होती है ना, उस दिन आपको घर पे भी वही खाना मिलेगा, उसी बेड में सोना है। पर 10 साल बाद जो बंदा कंसिस्टेंटली अपने पे काम करता है, तब उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसकी हेल्थ, उसके नेटवर्क, उसके रिलेशनशिप, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, सब में फ़र्क आ जाता है। और आप 20 साल कंसिस्टेंटली अपने, और इट्स नॉट अ बोरिंग लाइफ, इट्स अ फन लाइफ। यू फील रिलैक्स, आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी सेहत है, अपने काम पूरे करते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ रहे हो, यू फील सो इलेटेड अबाउट इट। बल्कि परेशान बंदा तब होता है जब उसको पता मेरे को करना चाहिए, मैं कर कुछ नहीं रहा, बैठा रहता हूँ मिला, वो तब ज़्यादा परेशान होता है। और 20 साल बाद जो भी आपने गोल सेट किए होंगे, ट्रस्ट मी, आप उनको नहीं पाओगे, आप उससे कहीं बेटर पहुंचे हुए, क्योंकि अभी तो आपको आपका पोटेंशियल ही नहीं पता। अभी तो आप तो टाइम पास कर रहे हो, एक एवरेज, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, हम लोग अपना पोटेंशियल अचीव नहीं करते। और सबसे बड़े रिग्रेट लाइफ में यही होते हैं कि मैं कर सकता था, 12वीं में नंबर ले लेता तो यहाँ होता, ये सारे आप सोचते हो ना। रिग्रेट्स की लाइफ से निकलो। हाँ, रिग्रेट होते हैं, होंगे, डोंट गेट कंज्यूम्ड विद इट, पर उसका सोल्यूशन ढूंढो कि अब नहीं, एंड सारी लाइफ आगे पड़ी हुई है। अगर वो ये सोच लीजिए अब तो मेरी बीटेक हो गई है, अब तो मैं इसी स्कोप पे चलूंगा, नहीं, ट्रजेक्ट्री कहीं पे भी चेंज हो सकती है बस। और अगेन यहाँ पे हम इतने लोग बैठे हैं, करना शायद एक आधा कर पाए, है ना, तो आप थोड़ा सा अपने पे काम करना शुरू कर दो, आप देखो कैसे आपके लेवल चेंज होते हैं, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, जैसे एजुकेशन सिस्टम है भारत का, आई थिंक मेरे जो बड़े भाई हैं, ही इज 5 years elder to me, व्हेन ही वाज डूइंग बीटेक, उसने जो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था 5081 या जो भी है, तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मेरे को भी वही आया। अभी माय नेफ्यू, ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, वो भी मेरे पास किताब लेके आया था कि ये पढ़ा दो, बड़ा मुश्किल है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत स्लो स्पीड से चेंज हो रहा है या चल रहा है, बट जो हमारी जॉब मार्केट है या जो हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, दे आर रैपिडली ग्रोइंग, चेंजिंग। स्किल सेट की डिमांड अभी है, 2 साल बाद कुछ और स्किल सेट की डिमांड हो जाएगी। इन शॉर्ट आई कैन से, जो बच्चा भी बीटेक में एडमिशन लेगा, वो शायद जो जॉब करेगा बीटेक करने के बाद, वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी मार्केट में। जैसे जब मैं बीटेक पे गया था तो ये एआई वगैरह की जॉब या ये रोबोटिक्स, ये दे डिडंट एग्जिस्टेड इन द मार्केट। जब मैं बाहर निकला तो वो मार्केट सिनेरियो ही चेंज था। सो हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रिपेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर जो जॉब्स क्रिएट ही नहीं है, अभी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए? देखो, पहले तो ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ लेगेसी कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें क्लर्क, कुछ या मैनेजर ऐसे लोग चाहिए थे, कुछ इंजीनियर भी चाहिए थे। तो बट अब इसको एक्सक्यूज़ हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो रिटायर होने वाले होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में होते हैं, उनको लगता है मैंने नहीं अब चेंज करना, वो अब उस पर जोर लगाने की बजाय कहीं और जोर लगाओ। आप लेट से हम सब स्टूडेंट हैं, हमें पता है जॉब मार्केट चेंज होनी है। कौन कह रहा है कि सिर्फ जो क्लासरूम का सिलेबस है वही पढ़ो? आप सोचो ही मत ऐसे कि भाई इसको लिमिटेशन, और लोग जॉब मार्केट में जा ही रहे हैं। कौन जा रहे हैं? जो, हालांकि आइडियली जो आप कह रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में, अगेन दिस इज वेयर आवर सिस्टम इज डिफरेंट, वी आर बिल्डिंग स्किल रडार। हम एक एआई पावर्ड बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर बना रहे हैं, जो रियल टाइम में स्किल्स को समझ के बोर्ड ऑफ स्टडी को रिकमेंड कर देगा, ताकि उनके लिए आसान हो, है ना। उनका काम, बुजुर्गों का काम आसान कर रहे हैं जो सीनियर टीचर हैं, पर ताकि सिलेबस में भी चेंजेस आए, बट लेट इट नॉट बी एन एक्सक्यूज। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई आपको भी पता है, और फिर आपकी जैसी एडटेक कंपनीज को काम नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अगर यूनिवर्सिटी हो गई तो फिर देन यू आर नॉट इवन रिक्वायर्ड। मैं इसलिए इसको डिसमिस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 सालों में हर एक इवेंट पे हम इसी पे अफसोस जताते रहे। क्या अफसोस करना है, जो है अब हम आगे का बढ़ते हैं और खुद लेट्स टेक, यू नो, कुछ अच्छे टीचर हैं, बच्चे हैं, उनको गाइडेंस दो, एंड देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल दीस डेज। ठीक है ना? करेक्ट। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक हर लीडर के दिमाग में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आता ही है। स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, उस टाइम मेरी एज 19-20 थी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो उस टाइम पे भी, बिकॉज इंडस्ट्री में मैंने 2 साल 3 साल काम किया है, बट छोटी कंपनीज थी, आई केम इन थोड़ा, आई हैड लिटिल एज ओवर माय स्किल सेट। टीम्स बना दी, टीम लीड बना दिया, 19 साल में टीम लीड बन गए, टीम्स मिल गई। फिर माय
plan from the beginning was कि once I finish my education I'll start my venture. जब फर्स्ट टाइम वेंचर स्टार्ट किया, फर्स्ट हायरिंग की 3 लोगों की, उस टाइम पे ड्यूरिंग माई फर्स्ट मीटिंग मेरे को दिमाग में एक चीज़ आई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो टीम लीडर होता है या जो बॉस होता है या यू कैन से हु इज़ द लीडर ऑफ द टीम. अब आई हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ लीडर्स. वन इज हु इज सिटिंग विद द टीम, लिसनिंग टू देम, उनके चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को हेल्प कर रहे हैं सॉल्व करने में, उनके साथ बैठ के सोल्यूशंस डिजाइन कर रहे हैं, मतलब जेलिंग अप विद द टीम. अदर काइंड ऑफ पीपल आर जो थोड़े बॉसी होते हैं, दे सिट ऑन वन प्लेस, एक कैबिन है उसी के अंदर बैठे हैं, वहीं से ऑर्डरिंग चल रही है. हाफ ऑफ द टीम मेंबर्स आर नॉट इवन अलाउड टू रीच देम, हियर के सिस्टम बना रखा है. और कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, ओके कल देखते हैं, परसों देखते हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जा रही है. सो बट ग्रो वो भी कर रहे हैं, उनका भी इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू यू, इन दोनों टाइप के लीडर्स में से विच इज़ द बेस्ट अप्रोच टू लीड अ टीम? देखो, अगर वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है वो तो फिर गलत ही है, वो तो प्रॉब्लम तो उसको सॉर्ट करनी है. पर तरीके दोनों, हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. और अगर आपको लगता है, लेट्स से टीम इज एट अ सर्टेन स्केल, आपकी टीम में 7000 लोग हैं, ठीक है ना, देन यू हैव टू स्ट्रक्चर थिंग्स कि भाई कौन लोग मिलेंगे, क्या बात करेंगे. स्टार्टअप, आई वाज टॉकिंग अराउंड द स्टार्टअप में भी इट्स ओके. लेट्स सपोज कि ये आपका स्टाइल है, एंड में थिंग्स शुड बी डिलीवर्ड, पीपल शुड फील इंस्पायर्ड, राइट. और आपके पास कितने काम है उस पर डिपेंड करता है, राइट. यू इंस्पायर पीपल, यू नीड नॉट टू सिट विद देम एवरी टाइम. योर एक्शंस, मैंने वही बोला, अगर आप फेयर हो, राइट, आपके अंदर, जैसे आपने बोला कि आपके अंदर एक्सेप्शनल स्किल है, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं. सो योर स्किल्स विल इंस्पायर पीपल, योर फेयरनेस विल इंस्पायर पीपल, बट यू हैव अदर थिंग्स टू डू. सो यू आर नॉट अ जस्ट देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स. सो यू डोंट हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, राइट, है ना. तो इसमें मैं, देखो, सही गलत वाली बात नहीं है, आपकी कॉल है. फेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को ड्यू अटेंशन मिलनी चाहिए जब चैलेंज है. अब दोनों की अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स देखूं, अगर आप ही बैठे रहोगे वो डिसीजन कब लेंगे? नहीं, जैसे माय क्वेश्चन वाज, देखो यहाँ तो आप पहले ही सोच के बैठे हो कि भाई एक तरीका ठीक है. नहीं है ना, नहीं है. माय क्वेश्चन वाज, जैसे अब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, मैं गया उनके पास, यार सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम. वहां से जवाब है, यार तुम खुद देख लो, यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. देखो, अगर वो ये बोलता है कि एक बार ट्राई करो और दूसरी बार सॉल्व कर देता है, अगर वो उसको कहता है मैंने देखना ही नहीं है, वो तो गलत ही है यार. वो तो उस पर तो मैं क्या बोलूं, दैट इज ऑब्वियस, वो तो गलत है. बट अगर वो बंदा कहता है एक बार ट्राई करो, मेक सम एफर्ट, दैट पर्सन माइट बी हेल्पिंग यू टू लर्न. एक है कि वो हर वक्त कोई बात नहीं, जो अगर मैं बैठ जाता हूँ बैड साइड पे, ले करके देता हूँ, उस टाइम पे तो बॉस बड़ा अच्छा लगता है, बाद में आपको पता चलता है मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं. तो ऐसा, इसको ना एक बैलेंस होना चाहिए, भाई यही ठीक है या यही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अगर वो अपने, अगर आप जिस तरह से इसको आर्टिकुलेट कर रहे हो इस क्वेश्चन को, कि वो अपने, आप बता रहे कि दूसरे वाला बंदा अपना काम ही नहीं कर रहा बॉस का, वो तो मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स गलत है. वो तो कहता है मैंने नहीं देखना, जो करना है करो, भाड़ में जाओ, वो अलग चीज है. वो माई वे और हाईवे वाला, हाँ, वो अलग चीज है ना. फिर वो तो, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग वे. बट अगर एक बंदा कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉसेस, ठीक है ना. मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पहले रोल में था एज अ ग्रुप सीईओ. मेरे को कितने लोग, मेरे को कई बार सिक्योरिटी वाला रोक देता था, कहते हैं आप कौन है, और मैं कहा मैं सीईओ हूँ इस कंपनी का, है ना. क्योंकि आपका काम है ना, आपको 7000 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप हर किसी से नहीं मिल सकते. फिर लोगों को बातें मारने का भी शौक होता है. आपका टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, इट इज वेरी. एंड देन जहां पे नहीं समझ आता है, आप इमीडिएटली सोल्यूशन, तो आपको पता है कि ये बंदा, ही और शी वोंट बी एबल टू डू समथिंग, यू हेल्प देम विद दैट. एंड देन जहां पे इंकरेज करना है, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, डेलीगेट करना है, वहां पे करो, ठीक है. इवन स्टार्टअप्स में, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, इट्स नॉट दैट आई एम ऑलवेज सिटिंग विद माय टीम. मेरा काम है बाहर जाके बिजनेस लाना, फंडिंग रेज करना, आई हैव अदर प्रॉब्लम्स टू सॉर्ट. जब उनका कोई चैलेंज है, लेट्स से कि कॉन्सेप्चुअली, मतलब विजन क्या है, वो मेरा रोल है, तो मैं उनको बताना है. पर मेरा काम उनको भी बताना है कि भाई आप, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. तो देखो, आप पॉपुलैरिटी का कॉन्टेस्ट नहीं है, ये बात क्लियर रखो, ठीक है ना. इट इज, यू नो, इट इज अ वेरी वेरी टफ वर्ल्ड. यू हैव टू मेक अदर्स ऑल्सो टफ. डू इट विद डिग्निटी, राइट. रिस्पेक्ट नहीं किसी की जानी चाहिए. बट अगर किसी ने गलत किया, दोज गाइस नीड टू बी टोल्ड. और अगर कोई नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, दे ऑल्सो नीड टू बी टोल्ड कि भैया फाइंड समथिंग एल्स. देखो, जब आप बंदे को टाइमली
टफ डिसीजन नहीं सुनाते, आप उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी, और बाकी लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हो। तो मैं अगर कॉल लेनी होगी, मैं बोलूंगा बी स्लाइटली टफ, बी स्लाइटली ऑन द टफर साइड। अगर लेट्स से पता नहीं है कि क्या सिनेरियो हो सकता है, बाकी अगर आपकी टीम ही इतनी इंस्पायरिंग और इंस्पायर्ड है और है, देन लीव देम अलोन। पर अगर आपको पता है कि इनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, या नहीं तो इनका ध्यान भटक जाएगा या इनको बार बार पूछना पड़ेगा, तो फिर पूछो। वैसे जॉब नीड्स टू बी डन, दैट इज द बॉटम लाइन, फेयरली, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल हैव टू बी स्लाइटली टफ, बट बी रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड, दैट इज, एंड अगेन फेयरनेस इज द वर्ड। कि ये नहीं कि जो पसंद है वो कुछ भी ना करे और जो नहीं पसंद है वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो टीम लीड्स, जो भी नेक्स्ट टीम लीड्स बनेंगे, दिस इज व्हाट यू गाइस हैव बीन आस्किंग मी एंड दिस इज द आंसर, राइट? ओके, अब टीम की बात हो रही, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टीम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, टीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो भी वो स्टार्टअप ग्रो करेगा या नहीं ग्रो कर पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन टीम का रहेगा, राइट? लीडर चाहे बहुत अच्छा हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड स्किल सेट वाला हो, इफ ही और शी डजंट हैव अ गुड टीम अंडर हिम, चांसेस ऑफ पासिंग दैट बैरियर ऑफ सक्सेस थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत कम हो जाता है। सो what do you seek, what is the a contribution of a good team? Secondly, what is a good team? Yep. देखो, again people should be aware what their exact role is. Secondly, expectation should be right. जब आप स्टार्टअप में आते हो, ये कोई बैंक का आजकल तो बैंक्स या गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं रह गया कि भाई मेरा काम है ये एंट्री करना, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। जो इस माइंडसेट से आया वो खुद भी ग्रो नहीं करेगा और कंपनी के लिए जो स्टार्टअप्स होती है ना, दे आर बिल्ड ऑन सैक्रिफाइसेस। लोग सोचते हैं कि मेरे को तो इतनी सैलरी मिल रही है, मैं इतना काम करूंगा। नो, आपको जितनी सैलरी चाहिए आप उसके लिए काम करो। आज काम पहले करना पड़ता है, बाद में वो ग्रोथ आती है। सो बड़े लोगों को मैंने देखा जी हमारी तो इतनी सैलरी में देना। सो टीम्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब वो कंपनी के लिए सेक्रीफाइस देते हैं, उनकी ग्रोथ अपने आप होनी है। शायद ये कंपनी ना डिलीवर कर पाए, पर आपको एक कैपेबिलिटी ऐसी आ जानी है, आपको किसी और ने वो वैल्यू दे ही देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, तो वो आप समझ के रखो कि भाई मेजरली मैं अपने लिए अगर मैं ये करता हूं तो मेरे बेनिफिट इसमें है ही है। एंड बी फ्लेक्सिबल इन अ स्टार्टअप इन्वायरमेंट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कमिजरेट फॉर योर लीडर, उस पर क्या प्रेशर्स हैं। देखो, अपने आप को दूसरे के शूज में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस दैट लीडर इज ऑल्सो मेकिंग, सो दैट मेक्स फॉर अ गुड टीम। आप अपने जब उनको शूज में रखोगे, आपको समझ में आनी चाहिए वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। जब एक बार एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो आप एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। जैसे सिंधु सर ने आज थोड़ा सा गलत बोल दिया, पर ही माइट बी अंडर प्रेशर, जर्नली ही इज अ गुड गाय, है ना? तो इस तरह से आप, दैट इज हाउ यू बिकम अ टीम, एंड देन यू ऑल ग्रो वेरी वेरी वेल। आप लेट्स से आप एक बैच ही हो काइंड ऑफ टेरा माइंड का, है ना? अगर आपने एक विजन के साथ काम किया, और लेट्स से आप इमेजिन करो आप 20 साल बाद एक दूसरे को मिले, यू ऑल विल बी इन टॉप पोजीशंस। जो लोग, पता चल जाएगा शुरू से ही कौन सेक्रीफाइसिंग है। एक रिसर्च हुई थी लॉन्ग टर्म सक्सेस पे, जिसमें जो भी पोस्टपोनमेंट ऑफ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी रिलैक्स कर लेते हैं, बाद में काम करिए, टिपिकल माइंडसेट। और जो लोग अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर पाते हैं, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। आज मैं सीखूंगा, आज पहले मेहनत करूंगा, एंड इन द लॉन्ग टर्म वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो एज अ टीम मेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मेरा साथी पीछे ना रह जाए। अगर उसको रेदर देन बोलने की सर उसको नहीं पता, ये नहीं, रेदर देन दैट हेल्प कि भाई आप ऐसे करो, आप देखना, आप वो कभी ना कभी आपके काम आएगा, आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, वो आपको लीडर मानना शुरू हो जाएगा। टीम से लीडर भी तो आपने बनना, अल्टीमेटली तो यही गोल है। वी आर एनीवे लीडर्स इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ तो लीड कर ही रहे हैं ना, वट एवर लाइफ वी आर लिविंग, वी आर ऑल लीडर्स। तो हम अपनी फैमिली के लिए लीड कर रहे हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए लीड कर रहे हैं, वी आर लीडिंग ऑलवेज। तो वो अपने नेचर में इनकलकेट करो। कैपेसिटी ऐसी बनाओ कि 20 लोगों के आप काम आ पाओ। आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी हो जाएंगी इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी। किसी की प्रॉब्लम उसको गाइड करो, मेंटोर करो, एंड यू सी। और ऐसे लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे लोगों के साथ ही काम करना चाहते हो, और वो कल को आपसे कोई हेल्प मांगेंगे तो ह्यूमन नेचर है, वो रेसिप्रोकेट करता है, उसको लगता नहीं आई हैव टू कंट्रीब्यूट। और कॉलेज तक तो आपका सक्सेस बड़ा इंडिविजुअल था, आपने पेपर देने हैं, नंबर लेने हैं। नाउ योर सक्सेस इज डेमोक्रेटिक,
आपकी 360 डिग्री इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, बॉस क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपका टीममेट क्या सोच रहा है, सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो बी देयर लीडर्स, टीम मेंबर भी लीडर है अपने आप में, ठीक है। एंड सेक्रीफाइस विल बिल्ड ग्रेट कंपनीज एंड ग्रेट करियर फॉर यू ऑल्सो। कंपनी बने ना बने पर आपका करियर ग्रेट हो जाएगा। स्टार्ट मेकिंग सेक्रीफाइसेस। अभी वो आई थी ना फिल्म धुरंधर, उसमें था बलिदान सर्वधर्म, एब्सोल्युटली राइट है। लाइफ इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, सेक्रीफाइस है ना, हम वो करते हैं हवन में जो डालते हैं चीज़ें, सेक्रीफाइस से ही दुनिया बनी है। जब हमने लेट्स से कि जब आदिवासी होते थे, जब शिकार करते थे, कोई भी किसी बंदे ने शिकार किया, वो अपने पूरे ट्राइब को खिलाता था, क्योंकि उसको पता आज मैं खिलाऊंगा तो कल मेरे पे तो मिलूंगा। वो उसको बचा के भी रखते थे कि भाई बुरे टाइम में काम आएगा। तो सेक्रीफाइस ही है, आपको सेक्रीफाइस करना सीखना है कि आज सामने बर्गर पड़ा है, नहीं खाना है, सेक्रीफाइस, आज हेल्दी खाएंगे, तो आप यू विल बिकम ग्रेट पीपल। राइट। सो बॉस की भी हमने डिस्कशन कर ली, टीम की भी कर ली, अब आते हैं ऑफिस कल्चर पे। राइट। अच्छा बॉस है, अच्छी टीम है, बट समटाइम्स आई हैव सीन ऑफिस का कल्चर थोड़ा सा वैसा नहीं होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड ऑफिस कल्चर इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टीम? देखो, कल्चर ईट स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आप जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी बना लो, अगर कल्चर अच्छा नहीं है, वो कंपनी ने नीचे जाना ही जाना। राइट। कल्चर अब अच्छा, हर कंपनी के लिए अपना एक कल्चर है, मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। अगेन सेक्रीफाइस, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, डिग्निटी तो फंडामेंटल है उसके, फेयरनेस, ये सारे फंडामेंटल्स है, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, दिस इज फंडामेंटल ऑफ इट। बाकी मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, तो मैंने तो एक लाइन में बोल दिया कि कल्चर सही नहीं है, एंड कल्चर कम्स फ्रॉम द टॉप। सो कल्चर्स इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द बॉस। राइट। तो यही सेम, जैसे अब कंपनीज हैं, दे हैव डिफरेंट टीम्स, उन टीम के टीम लीडर्स होते हैं, तो वो सब कल्चर होते हैं उसके। यस। तो एक टीम का खुद का कल्चर भी होता है। सीन सम टीम्स आर वेरी हैप्पी व्हाइल वर्किंग, सम आर सिटिंग क्वाइटली डूइंग ठक 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 ऑन लैपटॉप। तो अब ये दोनों टीम के कल्चर का भी हैप्पी और बंदा सीरियसली काम, वो अलग चीजें हैं। वो कल्चर खराब होना नहीं है उसका साइन। शायद हैप्पी वाली टीम ने कल्चर ज्यादा खराब किया हो, वो उससे कुछ नहीं पता है ना, ठीक है ना, सारे माल फूक के बैठे हुए हो थोड़ा, तो सारे खुश हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि कल्चर का मतलब है कि खुश रहना है। सो लेट्स बी, आप आउटपुट देखो, रिस्पेक्ट देखो, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, फेयरनेस है, दैट इज। जिस टीम में कल्चर कैसे खराब होता है कि टीम लीड है, उसके 5 लोग हैं, एक पर्सन उसको पसंद है, उसको फेवर दे रहा है, तो सब में डिसकॉन्टेंट आती है। फेयरनेस अगेन इज द राइट वर्ड, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि कल्चर के सही सिम्टम्स देखना, तभी आप सही इलाज कर पाओगे। आप बोल रहे ये खुश हैं तो उसका मतलब ये कल्चर बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपने डायग्नोसिस ही गलत हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन उस वे में नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि एक टीम है जो बहुत हैप्पीली काम करती है, प्रोडक्टिविटी देती है, एक टीम है जो कोने में बैठी है, आपस में इंटरेक्शन नहीं है, लगे हुए हैं काम पे, टास्क दिया है, हो गया, थैंक यू वेरी मच, कर चले गए। तो उन दोनों टीम्स के बीच में भी जो टीम लीड के थ्रू कल्चर इनकलकेट किया गया, देन बी स्पेसिफिक। ये तो देखो, ऐसे नहीं, ऐसे तो बड़े रीजन हो सकते हैं। जो एक बात मैंने बोली है, दूसरा है कि भाई टीम लीडर कंपिटेंट नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। और कोई पर्सन वहां पे अंदर कंपिटेंट नहीं है, वो हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता है, राइट, जिसकी वजह से टीम पीछे जा रही है, फिर धीरे धीरे सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपका सैलरी स्ट्रक्चर फेयर नहीं है, उस टीम में एक बंदा है जिसको सबसे कम आता है पर सैलरी डबल है, बड़े रीजन होते हैं। देन यू हैव टू डिग डीप। यहाँ पे थ्योरेटिकली इट कुड बी मिलियन रीजंस। राइट, ठीक है सर। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो। कमिंग टू माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जितना भी अभी आपका करियर स्पैन रहा है, उसमें जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उन सभी एक्सपीरियंस में कुछ गुड एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं। जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमको लर्निंग मिलती है, जो गुड एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमको मोमेंट्स मिलते हैं। सो कैन यू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अस, जो आपको लगा हो कि इस वजह से मेरे में काफ़ी चेंज आया, and this experience has helped me to become what I am today? देखो, मैं तो टिपिकली एवरीथिंग इज अ गुड एक्सपीरियंस। आप अगर लर्निंग ले ली उसमें से, मैंने जैसे बोला कि इनिशियली आई ऑल्सो
मेरा पहला स्टार्टअप, वन ऑफ द रीज़न वॉज कि मेरे को लगता था कि मेरे को सब कुछ पता है, एंड आई वॉज बिट एरोगेंट अबाउट इट. मेरे को लगता था आई एम अहमदाबाद से पढ़ा एंड ऑल दैट, एंड समवन गेव मी अ फीडबैक कि सर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, बाकी भी इंटेलिजेंट होते. अब मैं उस बात पे गुस्सा भी कर सकता था, पर उसी सेकंड आई चेंज, उसी सेकंड वो एक, मैं आज भी उस बंदे को बार बार बोलता हूँ कि सर आई रिमेंबर दैट आपने यू नो ही ज्वाइंड अदर कंपनी यू नो, एंड बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को फीडबैक मिली, राइट. देन आपको ओपन रहना, लर्निंग. हमें लोग बताते हैं हम अपने आप को बंद करके रखते हैं. मूवमेंट आई स्टार्टेड लर्निंग यू नो कि भाई मेरे को सीखना है. किसी ने मेरे को बोला कॉन्ट्रीब्यूट इन अदर सक्सेस. मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने बोला, प्रोफेसर के ऊपर है, उन्होंने, मैंने वो बात समझ ली एंड आई स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूट. एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग बैक टू मी इन मल्टीप्लायर्स, राइट. मैं अभी भी अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यूज़ चैनल के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मैं साइन करता हूँ. मेरे को 4 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, बिकॉज दे ट्रस्ट यू, दे वॉन्ट यू टू डू ऑल द बिग डील्स फॉर देम स्टिल, क्योंकि देन यू बिकम अ रेयर कमोडिटी. तो मेरा एक ये था एक्सपीरियंस. अच्छे एक्सपीरियंस वही होते हैं कि भाई आपको फॉर कम एफर्ट से कुछ मिल गया. मैं जैसे मैंने स्टार्टेड दिस कंपनी प्लेसकॉम, मैंने तो जॉब छोड़ दी, मेरे दिमाग में नहीं था कि भाई मेरे को फंडिंग मिलेगी. Then this very big US based company, they wanted me to be their CEO. I told them, we met through a common politician friend के थ्रू हम मिले थे. मैंने बोला कि सर मैं तो अब स्टार्टअप करने लगा हूँ, मैंने नहीं जॉब करनी है. उन्होंने जो भी बैकग्राउंड चेक किया होगा सब कुछ, दे सेड कि सर आप हमारी कंपनी में, मेरी सैलरी अभी भी उस कंपनी से आती है. वो कहते हैं आप एडवाइस करते रहो, हमें स्ट्रेटेजिकली हेल्प करते रहो, वी विल बाय योर कंपनी. मेरे को $2 मिलियन जॉब छोड़ने पे मिल गया. समटाइम्स यू गेट लकी आल्सो, राइट. सो इट्स बेटर टू बी लकी देन टू बी गुड. सो द पॉइंट है कि आपने, और वो क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने मेरी बैकग्राउंड चेक की कि भाई ये पिछले 6-7 साल में इसने उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव किया है. वो अचीवमेंट्स को लोग वैलिडेट आप, बिकॉज देखो अगेन आप अपने आप में एक पर्सन नहीं हो, आप अपने आप में एक पूरा एक ट्राइब हो, एक पूरा शहर हो आप. क्योंकि आज का सुधेंदु अगर कुछ फेयर नहीं है, गलत करता है, तो कल वाले सुधेंदु पे उसका, लेट्स से आज आप यू हैड टू मच ऑफ ड्रिंकिंग, कल हैंगओवर के साथ उठोगे, पेट खराब होगा, है ना, राइट. तो आज कंसिस्टेंटली अगर आप लोगों की हेल्प करते हो, तो वो जो विशाल ने जो अच्छे काम किए हैं, वो आज के विशाल को उसका बेनिफिट मिलता है. तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहो कि यू आर नॉट वन पर्सन, यू आर अ सेपरेट पर्सन. आपकी आज की चॉइसेस कल पे असर डालने वाली है, ठीक है ना. तो वो एक, उससे आप अपने आप ही लाइफ इज एन इनफाइनाइट गेम, कि आपको हर रोज हमारे गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आना ही आना है और वो फेयरली आएगा. आपको लगेगा कि भाई फेयर नहीं हुआ, वो आपको सिर्फ लगेगा, पर वो फेयर ही है. एंड इट्स एन इनफाइनाइट गेम. हर रोज आपके पास एक इटरेशन है, आज नहीं रिजल्ट आए कल आ जाएंगे, बट यू कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग. दैट इज द होल वेरी सिंपल बेसिक थिंग. After this, we'll have a question round. They have couple of questions with them, so they would like to ask you those questions. Absolutely. And so my first question is, when I was kid back in school, what kind of kid you was? Like funny one or like the silent one? I was very mischievous, funny. I remember, I went back to my school. Now they have my name written in my. I am from Holy Heart School. They said, मेरे प्रिंसिपल ने बोला, आप तूने सिर्फ मेरे को ही तंग करना था. और हमारे स्कूल में कुछ भी हो जाता था तो मेरा नाम बाय डिफॉल्ट ही ले लेते थे. एक बार मैं छुट्टी पे था, अगले दिन वहाँ पे कांड हो गया स्कूल में, अगले दिन मेरे को ले गए प्रिंसिपल के पास. मैं कहा मैं तो छुट्टी पे. सो आई वाज दैट जिस पे शक किया जा सकता था हमेशा. सो आई वाज वेरी मिस्चीवियस, आई वाज फनी, बट my teachers were very fond of me because I was always very respectful to them, and I would always listen to them. और that has been the, कई बार मेरे पेरेंट्स जाते थे, उनको लगता है पढ़ता नहीं है, पर मेरे टीचर बोलते थे बहुत अच्छा बच्चा है, वो बड़े हैरान होके आते थे. So my second question is, like whenever someone came in company as an intern or as an employee, like under someone, like under TLs, like sir, तो जो भी इंटर्न आता है या फिर एम्प्लॉय आता है, लाइक अगर इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है, ही काइंड गेट बुली और काइंड ऑफ गेट जज बाय समवन. ओके. तो उसके रिगार्डिंग वो या फिर वो शांत हो जाता है या फिर वो एक मंथ के अंदर वो लीव करके चला जाता है. तो उस सिचुएशन में देखो दो चीज़ें हैं. बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज अ सेपरेट थिंग. What it means doesn't mean that I am an introvert. It doesn't mean I can't talk.
What it means is that when I have to be in with people, I lose my energy. I'm not always keen. मैं हर रोज सेम लोगों को इसलिए मिलता हूँ because I have trained myself to be comfortable around those people. I also don't make, so I'm an introvert, but doesn't mean I can't talk or I don't know my stuff. So as an introvert is no excuse that when you are not contributing or discussing what is important to discuss. Being bullied is a separate thing that again company has to ensure that person is not bullied. And then running away is a solution to nothing. If someone is getting bullied और वो बंदा भाग रहा है तो फिर उसकी responsibility है. There are three elements to your question. One is introvert doesn't mean you will not communicate, you are not good at communication. And bullied, don't get bullied, it's as simple as that. Respond back, take it up with your bosses, right? And of course company responsibility is there to have that kind of culture. And running away, don't even think about it. कहाँ तक भागेंगे, Courage, stand up. Second question is from Ashish. Sir, in your opinion, so what kind of person can you think is truly happiness person? और we can say that जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है. लाइक सर मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिले हैं तो जो काफ़ी कम कमा के भी खुश है, कोई काफ़ी ज़्यादा कमा के भी खुश नहीं है, लाइक हसल ही कर रहे हैं. तो सर आपके जर्नी जितना आपने मुझे दिया आप क्या सोचते हैं? Okay, मैंने I think we were discussing, मेरा ये view है. What do we mean by success? For me, good health is very very important parameter of success. You are a fit, strong person. Secondly, respect from your peers within the society. Of course, certain level of money is also required. You should have a generous. कुछ लोग वही होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, ठीक है ना? Have a generous heart. If you don't have it, build it. Right? Love in your family, of course, is part of part of the game. And being exceptional to a certain level. कोई ranking नहीं है, पर अपने काम में exceptional होना, ये success के factors हैं. पैसा एक certain minimum तो चाहिए होता है. Happiness का वेस्टर्न कंट्रीज में अलग है, पर मेरे को लगता है एक सर्टेन अमाउंट के बाद पैसे की इंक्रीमेंटल वैल्यू कुछ नहीं है, राइट? आफ्टर अ सर्टेन आई हैव अ 2-seater स्पोर्ट्स कार. पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने ली. आई बॉट इट 2 years बैक. अब वो मेरे को सिरदर्दी लगती है. इट्स अ जैगुआर एफ टाइप. मैं उसको बोलता हूँ ये मेरा डॉगी है, इसको घुमाने लेके जाना पड़ता है क्योंकि 4 दिन का वो लगता है बैटरी ना बंद हो जाए, इसको लेके जाएं. सो द पॉइंट इज दैट मटेरियल थिंग्स विल नॉट मेक यू हैप्पी, बट इफ यू लाइक समथिंग यू हैव समथिंग. बट एट द सेम टाइम जो लोग हसल, देखो पहले तो बात है खुश या नहीं है, मेरे को नहीं पता. उन्होंने आपको बताया कि यार मैं पैसा तो बहुत है पर मैं खुश नहीं हूँ. हमें जज क्यों करना किसी को? वो शायद खुशी हो, उसको खुशी इसी में आती हो हसल करने में, आगे बढ़ने में, ठीक है ना? और कम पैसे वाला फेक कर रहा हो, सो जज मत करो. फोकस ऑन योर. ये अगर जिसके 4-5 एलिमेंट्स इन प्लेस है ना, वो जर्नली सक्सेसफुल है. खुश हर वक्त कोई नहीं रहता, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ. खुश रहना इज नॉट द गोल. कंपिटेंट होना, बेसिकली सक्सेसफुल होना, कंट्रीब्यूटिंग होना, वो गोल होना चाहिए, ठीक है ना? वो गोल होना चाहिए. खुश कभी रहोगे. अब आप लेट से बहुत कंप्यूटर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत पैसे भी कमा रहे हो, एंड यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. कल को कोई बेस्ट फ्रेंड एक्सीडेंट में मारा जाए, दुखी हो गए ना, राइट? आपको चलते चलते चोट लग जाए, दुखी हो गए ना. हर वक्त खुश कौन रह सकता है? मेरा पॉइंट ये है कि फोकस ऑन बीइंग कॉम्पिटेंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जेनरस, हेल्दी एंड skillful in your work. Just these are the basic things. ठीक है? Thank you, sir. Hi Hitesh. My name is Hitesh and I am here AI developer and trainer. I want to ask what habits or daily routine that help you in your professional or personal growth. Okay, first of all, whatever routines I set for myself मैं 100% नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, पर कुछ level तक कर लेता हूँ. So one is going to the gym, eating right food, spending time with my friends and my family, and trying to finish most of my work. ये मेरी कुछ हैबिट्स हैं. एंड रीडिंग सम टाइम. आजकल थोड़ा सा टाइम कम है, बट रीडिंग. सो दीज आर दी हैबिट्स विच आर contributing towards my success. And then there are some poor habits which are taking me away from my goals. Right? वो रील्स देखते रहना, मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, राइट? और अननेसेसरी ज़्यादा टाइम कुछ दोस्तों के जब काम होना चाहिए, जब स्टिल यू आर टॉकिंग, नॉट ईटिंग राइट ऑलवेज.
तो जो चीज़ें, वही चीज़ें जब मैं कम करता हूँ या गलत कर देता हूँ वो नेगेटिव में चली जाती हैं। तो वही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, अच्छी चीज़ें ज़्यादा करते रहो, नेगेटिव चीज़ें कम करते रहो, है ना। या हेलो सर, माय नेम इज शिवाना एंड आई एम हियर एज ए डेवलपर एंड ट्रेनी। और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हियर एट टेलेमेंट वी फोकस ऑन टीचिंग एआई एंड रोबोटिक्स इन स्कूल इन एआई लैब्स, बट what else do you think that specific skill set that we can add in our curriculum? in your curriculum? In EdTech sector. ओके, सो आई थिंक कोई भी स्किल को अगर बच्चे से हमने किसी से भी अच्छा पोटेंशियल अचीव कराना है, आपको वहाँ पे एक रोल मॉडल की तरह जाना चाहिए, नॉट जस्ट एज अ ट्रेनर। आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, किसी आप कितना हाई क्वालिटेटिवली बिहेव करते हैं, आप किसी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चे को समझाते कैसे हैं, तो आप एक रोल मॉडल बन जाए। आपके पास वो स्टोरीज़ हों, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हों, सिर्फ टेक की बात करके ना आप आ जाएं, राइट। देयर शुड बी अ टीचर अगर खुद ही चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो वो फिर वो बच्चे का बिहेवियर भी वैसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी को डांटने की ज़रूरत नहीं, पर एलिगेंट तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से बच्चों को सेल्फ अवेयर बनाना, बच्चे को समझ में आए कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और आप सबकी नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उस बच्चे को उस पाथ पे डालना कि वो नोट्स बनाए। मैं अभी सुधेंदु सर के लिए नोटबुक क्यों लेके आया कि ये नोट्स बनाएं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, अपने बारे में लिखना, बच्चों को लिखना सिखाओ। लिखने से बंदा जितना सीखता है ना, नोट्स बनाने से बहुत ही डीप थिंकिंग होती है। लिखना समाओ आपको बेटर बना देता है कि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या चीज़ सही कर रही हूँ या करनी चाहिए। व्हेन यू टेक नोट्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखने की आदत डालना, एआई और आजकल सिस्टम में हम ना प्रॉम्प्ट से आजकल चीज़ें हो जाती हैं, उनको लिखने की आदत से दूर नहीं जाने देना, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ, ये अगर आप सेल्फ अवेयर, उनको बहादुर बनाना, कोई बात नहीं, रिस्क लो, ट्राई करो। और बच्चों को फीलिंग ऑफ लर्निंग नहीं देना। अब लेट से मैं आपसे पूछूं कि 2+2, लेट से कि क्वेश्चन पूछूं, उसमें 3 चॉइसेस हैं, राइट, यस, नो, नॉट पॉसिबल। लेट से आप बोलो यस, फिर आप बोलो नो में, फिर नॉट में यस। अब तीसरी चॉइस तो होनी है। अब ऐसे फीलिंग ऑफ लर्निंग आ गई पर किसी ने सीखा कुछ नहीं, तो उसको एक्चुअल लर्निंग, जहाँ पे दैट पर्सन माइट फील, आपका टाइम भी ज़्यादा लगे, दैट पर्सन माइट फील दैट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, बट एक्चुअल लर्निंग करवाना, rather than फीलिंग ऑफ लर्निंग कि भाई उसको लगे हाँ मेरे को कुछ समझ में आया, एग्जाम में पास हो जाए, नॉट लाइक दैट। तो डीप लर्निंग के लिए एट्रिशन, मतलब कि वो जैसे कहते हैं ना, रगड़ा देना, वो बहुत ज़रूरी है, ये ना, टफ बनाना बंदे को। डोंट, बच्चे सॉफ्टी ना बन के निकलें, दे शुड बी टफ, है ना। उसके लिए टीचर को पहले टफ होना पड़ेगा, है ना। Next question from Sumit. My question is, how can we effectively balance different priorities of life, जैसे कि हेल्थ हो गया, फिर न्यू स्किल्स हो गए, ऑफिस वर्क हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे भी उसको बैलेंस करें? देखो, बैलेंस वर्ड निकाल दो पहले तो। देखो, इट्स अ कॉन्टिन्यूम। वर्क लाइफ बैलेंस की लोग बात करते हैं। आप हु आर यू, मैं आपसे पूछूं सुमित, कोई आपसे पूछे हु आर यू, आप बताओ कौन हो आप? माय नेम इज सुमित। नहीं, वो तो मेरे को पता चल गया। हु आर यू? हाँ, कौन हो आप? आई एम एन इंटर्न इन टेरामाइंड। एब्सोल्युटली, ये आपने बोला राइट। ये एक आपका प्रायोरिटी चीज़ है, जो आपका प्रोफेशन होता है उसमें अच्छा होना है। फिटनेस तो गिवन ही है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इन पे कॉम्प्रोमाइज, ये कॉन्टिन्यू है। अगर फिटनेस खराब हो जाएगी, देखो आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, वो भी एक उस एलिमेंट की भी आप बात कर रहे हो, किसी से जेलस फील करते हो या मम्मी पापा के साथ चिल्ला के बात करते हो, वट जो भी। अभी तो आप बच्चे हो इसलिए मैं आपके मम्मी पापा देख रहा हूँ, हम खुद मम्मी पापा इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स कॉन्टिन्यू, एक चीज़ को भी ख़राब करोगे ना तो दूसरी चीज़ों पे असर आना शुरू हो जाता है। अगर प्रोफेशनल अच्छे नहीं होगे, रोज़ बॉस से गालियाँ खाओगे, घर पे भी बिहेवियर चेंज होगा, जिम जाने का दिल नहीं करेगा। तो हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है और कॉन्टिन्यूम है और उसका दूसरे पे असर है। ऐसा नहीं है कि जॉब में आप बिल्कुल ही झंड हो और उसके बाद आप जाके सोचो कि भाई बाकी मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा फील करूँगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ आपकी सेहत बिल्कुल ख़राब हो रखी है और आपको लगता है बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, वो भी नहीं होने वाला है। तो हर एलिमेंट एक कॉन्टिन्यूम है, उसका दूसरे पे असर है, तो बैलेंस नहीं है। ये सारे क्रिटिकल एरियाज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स योर हेल्थ है, योर मेंटल हेल्थ, योर रिलेशनशिप हेल्थ, योर करियर हेल्थ। मतलब हर चीज़ पे उसको साथ साथ चल रहा है कि भाई प्रायोरिटाइज कुछ नहीं है।
ठीक है, पर एज अ प्रोफेशनल ये आपकी टॉप आइडेंटिटी यही बताते हो ना, इससे शुरू कर दो। एक चीज़ पकड़ते दूसरी चीज़ें अपने आप शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। आइडेंटिफाई करो, लिख के नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है नोट करो कहाँ कहाँ मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, कौन सी एक्टिविटीज़ अनप्रोडक्टिव हैं, लिखोगे फिर आप बेटर तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे। और ज़्यादातर हम लोग अपना ना टाइम अपने ब्रेन में ही वेस्ट कर रहे होते हैं। हम बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने और सोच रहे होते हैं उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो बड़ा कमीना, ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना। दिमाग में टाइम वेस्ट करना वो भी नोट करो। और वो करेक्टर भी फिक्स्ड होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा आप सोचते रहते हो, वो चीज़ें भी फिक्स्ड होती हैं। किसी के लिए मोबाइल होगा, किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होगी, किसी के लिए उसका दोस्त होगा, किसी के लिए फैमिली होगी, है ना। तो क्या वो प्रोडक्टिव है, कितना सोचने की ज़रूरत है, क्या आपके हाथ में है, नोट्स बना के। Hello sir, my name is Muskan and I am here as a AI developer and trainee. So my first question to you is that what do you mean by efficiency? And what are your principles and habits that make you consistently efficient? Okay. What I mean by efficiency is basically, getting things done in a smarter way. Not to make things unnecessarily complex. मैं सिंपल सी एफिशिएंसी की आपको, मैं वो फिजिक्स की एफिशिएंसी नहीं दूंगा, वो फॉर्मूला नहीं। सो बेसिकली यही होता है कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंप्लीफाई करें। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एक पुलिस वाला खड़ा है, 500 मीटर दूर एक चोर खड़ा है, ठीक है। चोर भागने लगा है, पुलिस वाले ने देख लिया। चोर भागता है 10 की स्पीड पे, पुलिस वाला भागता है 20 की स्पीड पे, ठीक है। और पुलिस वाले के पास एक कुत्ता भी है। अब कुत्ता क्या कर रहा है, जब पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है, वो चोर को टच करता है, वापस आता है क्योंकि कुत्ता फास्ट है, फिर पुलिस को टच करता है, फिर वापस जाता है, ऐसे करता है ना। तो आपने मेरे को ये बताना है कि जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, कुत्ता कितना भागा होगा, कैसे करोगे? बस अप्रोच बता दो, आंसर नहीं मैं मांग रहा, कैसे करोगे? चलो मैं बताता हूँ। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जब पहली बार जो वो दौड़ेगा, चोर वहाँ तक पहुँचा होगा 30, है ना, फिर वो वापस आएगा, पुलिस वाला यहाँ तक पहुँचा होगा। ऐसे ही करोगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, राइट। कुत्ते ने पकड़ना नहीं है, वो टच करके वापस आ रहा है। हाँ, कुत्ता पुलिस में नहीं है। पर अब इतने कितने स्टेप लोगे, ये तो इन्फिनिट स्टेप हो जाएंगे। पर मेरे को पता है कि पुलिस वाला चोर को अगर 10 की रिलेटिव स्पीड है, 500 मीटर है, तो 50 सेकंड में पकड़ लेगा। और कुत्ते की स्पीड 30 है, तो 50 सेकंड उसने दौड़ना है। 50 × 30 1500। तो मैंने चीज़ को सिंपल कर दिया, रादर देन उसको कई बार चीज़ों को होल करके, कई बार चीज़ों को ब्रेक करके आप चीज़ों को एफिशिएंट कर सकते हो। तो ऐसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, चीज़ों को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो आप एफिशिएंट होते हो। अगर आप दिमाग में रखोगे वो मॉडल होती रहेंगी और आप आप एफिशिएंट नहीं रहोगे। स्टार्ट फिनिशिंग थिंग्स, जो हो सकती हैं उसको करते रहो। लाइफ में प्रायोरिटाइज किसको करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करनी है जो चीज़ें अगर जॉब में हो तो जो बॉस ने बोली है, ठीक है, या वो चीज़ें करनी है जो सबसे मुश्किल लगती हैं पर ज़रूरी है। ईट योर फ्रॉग इन द ब्रेकफास्ट। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, एंड में करना जो कंफर्टेबल काम है। तो इससे आप एफिशिएंट हो जाओगे। हम क्या करते हैं, जो सबसे ईजी लगता है ना, वो पहले करते रहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम टालते रहते हैं, जो नहीं ज़रूरी हैं उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये इनएफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीज़न है ना। And my second question is about AI. So current AI is almost performing almost everything, each and every task. Okay, so does it mean AI is reaching its limits, and does it mean that are there any missing innovations? Look, I don't know if I'm qualified to answer this, but to best of my knowledge, because I'm not an AI engineer, right? And I also worry about these things. And basically, AI has reached its limits. I don't think so, because if enough innovation is allowed and way AI is going, it might do a lot more things. I don't know if it can do everything. Still, a lot of tasks are more complex. We see, कि क्या क्या और कर सकते हैं। और पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो इससे ज़्यादा करवाना नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं आई समटाइम्स वरी अबाउट कि इससे ज़्यादा पे AI का क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे, क्योंकि लाइफ में हमें पर्पस चाहिए होता है। अगर AI सब कुछ कर देगा तो लाइफ में पर्पस क्या रह जाएंगे हमारे, सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। हाय अदिति। Hello sir, my name is Aditi and I am here as an AI developer and trainer. I have two questions. First is,
I would say there is a trend or there is a thing in a market continue going on. If you want to start a startup, you have to go in a job, then you have to make a connections with the people, and then you have to start taking some experiences or something like that. Is it the right way to start something, or it's just a myth and we are it's a trend maybe? No, there are no definitive rules about it. It will definitely help. If you, let's say, are well connected, if you know certain things, it will definitely help, it's not a bad advice. But if you feel that you have an idea and you feel compelled to do it right away also, right? And you test the waters. But experienced entrepreneurs, it is a myth is that only college dropouts are making money. Most of the successful entrepreneurs are over 40. Those guys are generally more successful because you learn your experience, you build your network and connects. All right. So it's not a bad advice that build some connects, have some money, right, and know something, rather than just being a dreamy-eyed greenhorn, right, and then losing all your parents' money. So it's a good idea, actually, smart idea. But if you are passionate about something, if you have a compelling idea, then do it. Yeah. Thank you so much. And my next question is, okay, so you are focused now, you are disciplined, you have put everything you have, like everything, and you are going in the right direction. Somehow there is a thing in your mind, like this time if I'm not achieving it, I will restart. And unfortunately, you couldn't make it. So the next time you restart it, and you are following 101%, you are like learning from your mistakes, and this time you are not gonna make the same mistakes that you are making it before. So this time, if you are not making it is right to having a second plan, or maybe, or you just need to be stick in it and you just leave it. If it make it, or it's good. If it not, then I'll leave it. देखो, इसीलिए गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता। आप एंड में क्या होगा, आप यू कैन डू एनीथिंग। लेट्स से फेल हो गया कोई चीज, आप बहुत कुछ सीख के निकलोगे उसमें। You will become more valuable to certain companies. I also, failed in my first business, but that made me a great employee. I became the group CEO of a very big group. तो इसमें you might not achieve something that you have focused on, but you will get something else if you are doing it right. आपने लेसन सीखे, एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, कुछ और कर लो, पर ये चांसेस हैं फेल होने के। और अगेन, you do your best. That is only thing in your hand. ये फिलोसफिकल लगती है, पर यही है। और इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, क्या गलत हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपको लग रहा है मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर आप शायद ना कर रहे हो। एक्सपीरियंस लोगों से मिलो, उनसे डिस्कस करो, और मॉडल्स क्या डिफरेंट कर रहे हैं। डोंट लीव योर प्रॉब्लम्स अंडर द कार्पेट। कई बार ना हम अपने आप से ईमानदारी से बात नहीं करते हैं। डोंट लेट द प्रॉब्लम्स ग्रो, उसको फेस करो। प्रोडक्ट में बग है, ये चीज़ नहीं है, हम बात करने से अपने से घबरा जाते हैं। ये मैं अपने पहले एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दिस टाइम मैंने स्टार्टेड, आई थॉट आई विल मेक द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट आई फोकस। कोई भी चीज़ नहीं चली, हम देखते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको मूव करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें पता है हमारे अंदर कमी है, पर हम खुद से बात नहीं करते उसके बारे में। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ब्रूटली ऑनेस्ट। इफ लेट्स से यू आर लेट्स से समवन इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, कि यार मैं झूठ बोल देता हूँ, गप्पे मार, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि मैं, इफ यू आर एरोगेंट, नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम एरोगेंट। आपको लगता होगा कि भाई मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, पर आप डिसरिस्पेक्टफुल होते, तो वो चीज़ का डिफरेंस अपने आप से, या कंसिस्टेंट फीडबैक लोगों से क्या आ रही है ना। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई आप एरोगेंट हो, और आप बोल रहे हो मैं तो ईमानदार हूँ, लोग तो घुमा फिरा के बातें करते हैं। नो, टेक फीडबैक ऑल्सो। और होंगी चीज़ें गलत होंगी, पर यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। डोंट वरी टू मच अबाउट द एंड रिजल्ट। दैट इज, आपका भी फोकस ये है कि गलत हो गया तो क्या होगा। डर तो लगना ही है, और डर के आगे और डर है। सो द पॉइंट इज, दैट वाज अ जोक, डर के आगे ही जीत है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई डर लगता है, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज एक्शन डिस्पाइट दैट फियर। ऑलराइट, यू स्टिल हैव टू टेक एक्शन। अगर बनना है, अंदर बना तो बनो, ठीक है ना। फेल होने के चांसेस तो हैं ही, जॉब में भी फेल होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं, दैट इज द पॉइंट। ओके, So with this, I think we'll end this first episode of our Terra Talks. Thank you so much for coming, sir, and guiding us, sharing your experience, giving us the learning. You're a great team. I think your company is in great hands. You're going to be a unicorn.